myself Saurav Patil. I welcome you all to this our video lecture series. Today we are going to look towards complete approaches to the study of international relations. You can say approaches or theories to the international relations, right? So let's begin. Hmm. So what are going to be our references, right? So I gone through the globalization of world politics by the Belly Smith and all, then the global politics of Andrew Haywood. Then the 50 key thinkers in international relations. Then there is another one book, International Relations Theories. Then the Building Your IR Theory Toolbox, an Introduction to International Relations. These are all theoretical books, right? I went through or I gone through. So beyond that, in this video lecture, what I'm going to do is I'm going to analyze the previous year questions that been asked in your NetJAR previous year questions, right? So from Team Prabhat. So from 2012 to 2019 to 20 onwards, so we are going to analyze this all 8-9 years previous year questions that been asked on this IR theories, right? So let's begin. So uh, I'm going to use some of my notes, right? Also there are slides also, but within slides there are some notes. So what are the basic assumptions? So there are two theories that we can compare, right? So one is liberalism or idealist theory, you can say, or liberal internationalism, and other is realist theory. And these are two counter theories to each other, right? And there are some other theories that we can say alternative theories or critical theories or Marxist theories, etc. So there are some basic assumptions, right? So what are they? Liberal idealist theory जो है, they that is like human beings as essentially good, right? Or capable of altruistic or mutual aid or collaboration, cooperation. So there is a positive view of human nature. Human beings are rational and moral creatures. That is the first basic assumptions. These both theories are inside out theory. Inside out means human nature is like that and that reflect outside their world. That's called the inside out theories. Then the in realism, human nature is characterized by the selfishness and greed. You can remember Hobbes, Machiavelli, same Morgenthau, Walt, etc. Right? So human nature is characterized by the selfishness and greed. Here is a positive view, here is a dismal view, right? Then the history is a progressive process characterized by the growing prospects of the international cooperation and peace. Here politics is domain of structured by the power and coercion, right? So you can say that here cooperation, peace, rationality. Here is a power, coercion, selfishness, greed, etc. Third is the mixed actor model of global politics. मतलब liberalism में क्या बोलता है कि state are important, state are the most important, but there are other sector also. So there are the mixed actor, right? There are other actors like MNCs are there. There are some personalities, etc., etc. There are world institutions like UN, like other some institutions, you can say. In realism, they say that the state are the key global actors. State are the most important primary actors. State are the key global actor, right? That's why statism. Then the trade and economic interdependence makes war less likely. मतलब दोनों देशों के बीच अगर ट्रेड हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर वो इंटरडिपेंडेंट है, कुछ उनके आवान देवान हो रही है, so what happens is there is less likely that both countries goes to the war, right? That doesn't happen. ऐसे लिबरलिज्म कहता है हियर स्टेट प्रायोरिटाइज सेल्फ इंटरेस्ट एंड सर्वाइवल प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी अबो ऑल एल्स. मतलब स्टेट की जो सिक्योरिटी होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसका सेल्फ सर्वाइवल, उसका सेल्फ इंटरेस्ट कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? उसके नेशनल इंटरेस्ट में रिफ्लेक्ट होता है. व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट? जो भी स्टेट का जो भी सेल्फ इंटरेस्ट होगा वही नेशनल इंटरेस्ट होगा, और वो जहां रिफ्लेक्ट होता है दैट्स अबो ऑल. मतलब आप समझ रहे हो, ये रियलिज्म वास्तववाद हम जिसको कहते हैं, ठीक है. Then the international law helps to promote order and fosters rule governed behavior among states. मतलब इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं? स्टेट ऑपरेट्स इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनार्की. देयर इज अ सेल्फ हेल्प. कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. इट्स लाइक एनार्की. देयर इज अ नो वन अबो द स्टेट. स्टेट इज अ सॉवरेन, ठीक है. Then the democracy is inherently peaceful, particularly in reducing the likelihood of the war between two democratic states. Democratic peace theory या कांड की हमें perpetual peace theory जो है ना, ये लिबरलिज्म में आती है, ठीक है, कि अगर दो देश डेमोक्रेटिक है तो उन दो देश के बीच में वॉर नहीं होगा.
ये क्या कहते हैं, ग्लोबल ऑर्डर इज स्ट्रक्चर बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैपेबिलिटीज अमंग स्टेट, मतलब अलग अलग देश में पावर है, कैपेबिलिटीज, रिलेटिव कैपेबिलिटीज है, एब्सोल्यूट कैपेबिलिटीज जो भी है उनके बीच में संघर्ष होता रहेगा। ठीक है। इंडिविजुअल्स आर प्राइमरी इंटरनेशनल एक्टर्स, ऐसे ये कहते हैं। ये कहते हैं कि द बैलेंस ऑफ पावर इज द प्रिंसिपल मीन्स टू इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी एंड अवॉइडिंग वॉर्स। सो बैलेंस ऑफ पावर की बात कौन करता है? बैलेंस ऑफ पावर की बात रियलिस्ट थ्योरी करती है। मॉर्गन का बैलेंस ऑफ पावर नाम का एक बुक भी है। ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पावर मतलब क्या कि कोल्ड वॉर का कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यूएस का एक ब्लॉक था और यूएसएसआर का एक ब्लॉक था, रशिया जिसको हम अभी कहते हैं। तो उन दोनों के देश में वो अगर ये कर रहा है तो वो कंट्री भी यही करेगा, वो ब्लॉक भी वही करेगा, तो एक दूसरे को लोग बैलेंस करेंगे। सपोज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, तो दोनों भी देश एक दूसरे के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेंगे। सो दैट इज द बैलेंस ऑफ पावर। सो हियर स्टेट इंटरेस्ट आर डायनेमिक एंड आर बोथ सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग, मतलब स्टेट के इंटरेस्ट है वो डायनेमिक है हर एक टेस्ट के, और ये अदर रिगार्डिंग भी है, सेल्फ रिगार्डिंग भी कुछ इंटरेस्ट है। ये क्या कहते हैं कि इथिकल कंसिडरेशंस आर एंड शुड बी इररिलेवेंट टू द कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। कोई भी इथिकलिटी की बात नहीं करता, मोरालिटी की बात रियलिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। बोथ इंडिविजुअल एंड स्टेट इंटरेस्ट आर शेप्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंडीशंस। ऐसे ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, आईआर इज नेसेसरीली कॉन्फ्लिक्चुअल एंड दैट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर अल्टीमेटली रिजॉल्व बाय वॉर। ठीक है। सो म्यूचुअल इंटरेस्ट कैन सस्टेन कॉपरेशन इन द इंटरनेशनल सिस्टम। अगर इंटरेस्ट कॉम्पिटिटिव है वो ठीक है, लेकिन तो भी हमारे जो म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं दे आर द म्यूचुअल, राइट, वी कैन फुलफिल आवर इंटरेस्ट बाय हेल्पिंग ईच अदर, दे आर इंटरडिपेंडेंसनेस, राइट, ऐसे लिबरल्स कहते हैं। हाई रिगार्ड फॉर द वैल्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेट सर्वाइवल। रियलिज्म में नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट सर्वाइवल, बैलेंस ऑफ पावर, नेशनल इंटरेस्ट, ये वर्ड याद रखिए। एनार्की, war is the worst feature and can be eliminated with the doing away individual institutional arrangements that encourage, और war is not inevitable, ऐसे ये लोग कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि pessimistic about any kind of order rule at world level, और ये क्या कहेंगे कि नहीं वर्ल्ड लेवल पे हम कोई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So these are all basic assumptions. Why I am spending that much time, like almost 5 to 6 minutes on that slide, because these two assumptions, when we compare these two assumptions, we can make sense of whatever they are going to say later. Later all slides of liberalism and realism or neo-realism, that's the crux, the summary is in this one slide, because this both assumption, when we compare this both assumptions, all things goes easy, right? So let's go. So idealism, or you can say liberal internationalism. So अर्न हैस का एक बुक है, ठीक है, बियॉन्ड द नेशन स्टेट। देन द वी नो द कार्ल ड्यूश वी सीन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, राइट, कम्युनिकेशन थ्योरी और साइबरनेटिक्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसका जो यहाँ आईआर के लिए हमें जो सिक्योरिटी की वो जो बात करता है ना कि कम्युनिटी सिक्योरिटी की थ्योरी जो इसकी है, ठीक है, वो है इंपॉर्टेंट। माइकल डॉयले, लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स उनका बुक है, उनमें वो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है। और जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय इमैनुअल कांट्स की परपेचुअल पीस थ्योरी। 2013 और 2015 के दिसंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी किसकी है या कौन से अप्रोच में आती है। ठीक है। तो माइकल डॉयले डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, याद रखिए इसको। देन द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी क्या है कि अगर बोथ कंट्रीज डेमोक्रेटिक होंगे तो उनके बीच में वॉर नहीं होगा। ठीक है। दैट्स द वन थिंग। अनदर वन थिंकर इज ब्रूस रोजेट, ये भी 2018 के जुलाई में क्वेश्चन आ गया था, इन दोनों की मैच द फॉलोइंग में आ गया था। देन द फ्रांसिस फुकुयामा, यू ऑल नो दैट, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड ऑल। देन द अर्न हैस्ट, ये बुक है उनका, बियॉन्ड द नेशन स्टेट। ठीक है। सो उसमें वो फंक्शनलिज्म एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, फंक्शनलिज्म की थ्योरी जो देता है वो अर्न हैस्ट की है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन द स्टैनली हॉफमैन और रिचर्ड रिसोली, दीज आर ऑल थिंकर्स, बिकॉज समटाइम्स दे आस्क लाइक विच मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं, या विच ऑफ दिस नॉट थिंकर रिलेटेड टू, मतलब ऐसे कोई किसी थ्योरी देंगे, ऑड मैन आउट एक आधा थिंकर देंगे। इसलिए मैं जानबूझ के पहली जो स्लाइड होगी हर एक अप्रोच की हम थिंकर्स जानेंगे कौन कौन है, ये कुछ थिंकर्स जान लीजिए, आइडियलिज्म लिबरलिज्म से रिलेटेड है। देन दिस इज वन इंपॉर्टेंट स्लाइड। I hope the handwriting is visible to you. If not, I am going to read that, right? So you can note that down. So within liberalism, you can say pluralism or theory of conflict resolution. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंकर इज इमैनुअल कांट, द परपेचुअल पीस थ्योरी जो उनका था ना, थीसिस था, एक फिलोसॉफिकल स्केच था, वो थीसिस था, 1795 में पब्लिश हुआ था, इससे वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। देन द स्टैनली हॉफमैन, आल्सो ट्रेडिशनल रियलिस्ट उनको बोला जाता है, उनका बुक है वर्ल्ड डिसऑर्डर्स जो उन्होंने 1998 में लिखा था, एंड द क्राइसिस ऑफ लिबरल इंटरनेशनलिज्म जो 1995 में लिखा था।
देन द रॉबर्ट केहोन, वी नो दैट ऑल, दिस इज रॉबर्ट केहोन। उनका एक कंसेप्ट है ना कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जो उन्होंने जोसेफ नाय, ये दोनों ने मिलकर लिखा है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, राइट। रॉबर्ट केओन जो है और जोसेफ नाय जो है, उनको हम न्यू फंक्शनलिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और लिबरल जो न्यू लिबरलिज्म की जो बात करते हैं, जो न्यू लिबरलिस्ट आयर की जो थ्योरी है, इसमें वो आ जाते हैं, ठीक है। सो आइलैंड्स ऑफ पीस की बात जो करते हैं ना कि फंक्शनलिज्म मतलब क्या है, कि ईयू का वो एग्जांपल देते हैं कि अगर एक दूसरे के साथ वो एक सुपरा नेशनल कोई एंटिटी बनाते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड वगैरह सब कुछ करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड आइलैंड्स ऑफ पीस, उनके बीच में कभी वॉर नहीं होगा, ठीक है। सो कौन से बुक्स है कि ट्रांसनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। पावर एंड इंटरडिपेंडेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन 1977 में इन दोनों ने मिलकर लिखा है, ठीक है। सो ये दो बुक्स जो है ये दोनों ने मिलकर लिखे हैं। बाकी के सब जो बुक्स है वो रॉबर्ट केओन ने अकेले ने लिखे हैं। कौन से है कि आफ्टर हेजीमनी, रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, स्टडी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, थ्योरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, स्ट्रक्चरल रियलिज्म एंड बियॉन्ड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट पावर 1989 में, आफ्टर द कोल्ड वॉर 1993 में, द कंसेप्ट ऑफ लीगलाइजेशन। सो ये कुछ उनके बुक्स है, ठीक है, रॉबर्ट केओन के। देन द अर्न हैस, इसको हम न्यू फंक्शनलिस्ट भी कहते हैं, या इंटीग्रेशनिस्ट थ्योरी जो उनकी है ना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यू फंक्शनलिस्ट और इंटीग्रेशनिस्ट थ्योरी, राइट। सो वन ऑफ द फाउंडर ऑफ न्यू फंक्शनलिज्म, द बैलेंस ऑफ पावर प्रिस्क्रिप्शन कंसेप्ट ऑफ प्रोपेगेंडा 1953 में इन्होंने लिखा था, डायनामिक्स ऑफ पावर 1956 में, द यूनाइटिंग ऑफ यूरोप, ठीक है, 1958 में लिखा था ये भी, ठीक है। देन द बियॉन्ड द नेशन स्टेट एंड फंक्शनलिज्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1969 में, देन द वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंस यूएन एंड आईओ 1970 में लिखा था, देन द टैंगल ऑफ होप्स यूएस कमिटमेंट्स, ये जो बुक है 1969 में लिखा था, एंड व्हेन नॉलेज इज पावर, उन्होंने 3 मॉडल्स दिए नॉलेज ऑफ पावर के, ठीक है, वो भी 1990 में लिखा था, ये उनकी कुछ बुक्स है। देन द डेविड मिट्रेने, वी ऑल नो दैट द फंक्शनलिज्म के फाउंडर इनको माना जाता है, डेविड मिट्रेने को। उनका एक स्पिल ओवर इफेक्ट है। स्पिल ओवर मतलब क्या है कि अगर आप कोई एक चीज में कॉपरेशन करते हो तो आप दूसरी चीज में भी कॉपरेशन करने लगते हो, तीसरे में, सपोज एजुकेशन में कॉपरेट कर रहे हो, इकोनॉमी में कॉपरेट कर रहे हो, तो आप एट द एंड आप स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन में करोगे एक दूसरे के साथ, तो एक स्पिल ओवर इफेक्ट न्यू फंक्शनलिज्म में वो लेके आते हैं, ठीक है। सो माइकल डुएली, वी ऑल नो दैट डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी उनकी जो है, कांट से वो इन्फ्लुएंस हो गए थे। उन्होंने कांट लिबरल लीगेसी एंड फॉर्जन अपेस करके एक बुक भी लिखा है, लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या है, वेज ऑफ वॉर एंड पीस भी है 1997 में, ठीक है। सो ये इनकी कुछ भी बुक्स है, लाइक जेपी स्वेल और पॉल टेलर, एजर ग्रूम, जॉन बर्टन, क्रिस्टोफर मैचलेस, ये भी कुछ थिंकर्स उसमें आ सकते हैं। देन द कार्ल ल्यूइस, यू ऑल नो दैट 1912 थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इन्होंने दी थी। देन द फ्रॉम नेशनल डेवलपमेंट टू ग्लोबल कम्युनिटी, एक उनका बुक है। नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन 1953 में इन्होंने लिखा था। पॉलिटिकल कम्युनिटी एट द इंटरनेशनल लेवल 1954 में, पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड द नॉर्थ अटलांटिक एरिया 1957 में, मल्टीपोलर पावर सिस्टम एंड इंटरनेशनल स्टेबिलिटी 1964 में, द नेशन बिल्डिंग 1966, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट 1966, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये कम्युनिकेशन थ्योरी इसमें दी है इन्होंने, और कंपैरेटिव पॉलिसी में भी पूछ सकते हैं। द एनालिसिस ऑफ पावर 1968, नेशनलिज्म एंड इट्स अल्टरनेटिव 1969, सॉरी। सो दीज आर ऑल बुक्स बाय कार्ल ड्यूइस। देन द वुड्रो विल्सन, उनका हमें पता है कि जो उनके 14 प्रिंसिपल्स थे और उसके बाद जो लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश हुआ था, और इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी वो ही प्रोपोगेंट करते हैं, पीस वायर डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं। देन द रिचर्ड रोस्क्रेन, द न्यू कंसेप्ट ऑफ पावर, एक्शन एंड रिलेशन बिटवीन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इनका कुछ बुक है या कंसेप्ट है हम कह सकते हैं। सो एंड द फ्रांसिस फुकुयामा, द एंड ऑफ हिस्ट्री आफ्टर द बैटल ऑफ जीना, रिप्लाई टू माई क्रिटिक्स, और द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और ट्रस्ट एंड सोशल वर्च्यूज, द रिलेशन ऑफ प्रॉस्पर्टी, सोशल कैपिटल एंड ग्लोबल इकोनॉमी, सोशल कैपिटल पे भी उन्होंने लिखा है, ठीक है। स्टेट बिल्डिंग, गवर्नेंस, वर्ल्ड ऑर्डर इन 21st सेंचुरी, उनका एक बुक है 2004 में जो आया था। सो दीज आर ऑल बुक्स ऑफ फ्रांसिस फुकुयामा। यही कुछ पूछेंगे। वो क्या पूछते हैं, देखो नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी मैंने क्वेश्चंस पूरे एनालाइज किए हैं, और आपके अलग अलग एंट्रेंसेस में पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन मैंने एनालाइज किए हैं, और मुझे इतना समझ में तो आ गया है वो ज्यादा कुछ डेप्थ में वो जाते नहीं है। या तो कौन सा अप्रोच में कौन सा थिंकर आता है, वो मैच द फॉलोइंग में आपको एक आधा थिंकर आ जाएगा, या उनके जो डोमिनेंट एक दो बुक्स होते हैं वो पूछेंगे, या उनका कुछ जो कंसेप्ट उनका एक होता है ना, कि सपोज आप न्यू स्ट्रक्चरलिज्म या न्यू रियलिज्म की बात करते हैं तो वॉल्ट का नाम आता है, ऑफेंसिव रियलिज्म का बात करते हो तो मार्शिमर का नाम आता है, क्लासिकल रियलिज्म की बात करते हो तो मॉर्गन था का नाम आता है। तो सीधा ऐसे कुछ कौन सा थिंकर को कौन सा कंसेप्ट एक्सेट्रा पूछते हो, तो ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो नेक्स्ट स्लाइड। So core argument of liberalism is that concentrates on the unaccountable violent power and the fundamental threat to individual liberty must be restrained. So एक institution, हम नाम्स की बात करेंगे, institution and organizations की बात करेंगे, cooperation की बात करेंगे, economic institutions की बात करेंगे, interdependence की बात करेंगे, ठीक है। These are all about
लिबरलिज्म. सो व्हाट इज द लिबरलिस्ट थ्योरी ऑफ आईआर और यू कैन से आइडियलिज्म. कांट के परपेचुअल और यूनिवर्सल पीस थ्योरी से वो इन्फ्लुएंस हो गए थे, राइट. थॉमस एक्विनास का जस्ट वॉर का कंसेप्ट था. आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डेप्थ, आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट सम मेजर पॉइंट्स फ्रॉम दिस ऑल माय नोट्स. सो took shape during World War I, but later marginalized due to the failure of इंटरलिबरल जो लीग ऑफ नेशन के फेलियर के बाद एक मार्जिनलाइज हो गई ये थियरी. वर्ल्ड वॉर 2 आया, ठीक है. सो इनका जो सेंट्रल थीम है वो क्या है कि नोशन ऑफ हार्मनी और बैलेंस अमंग द कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट, ये उनकी मेजर थीम है. conflict is reconcilable at the deeper level, competing interest compete in one another and possibility of peace and cooperation, इनकी ये बात करते हैं. सो उसमें क्या है कि इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म है. इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म क्या है कि ग्राउंडेड इन आइडियाज अबाउट ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस होंगे, फ्री ट्रेड होगा, वेब ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगा, मटेरियल कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत हाई हो जाएगी, इसलिए देश वॉर के लिए नहीं जाएंगे. सो कोबेन एंड ब्राइट ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है. इंटरडिपेंडेंस. फिर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है जो केओन और नाई उनकी बात करते हैं, एक न्यू लिबरल्स हम इनको कंसिडर कर सकते हैं. रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट टू विच पीपल एंड गवर्नमेंट्स आर अफेक्टेड बाय व्हाट हैपेंस एल्सवेयर, नॉट ओनली बाय इकोनॉमिक डोमेन बट एडवांस ऑफ, मतलब ग्लोबलाइजेशन है, अदर कुछ डोमेन्स है, उसमें स्पिल ओवर इफेक्ट है, लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, देश एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कल्चरल मिक्सचर है. तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है. ये उनका एक थ्योरी है, याद रखिए. और लो पॉलिटिक्स की बात करते हैं दोनों. लो पॉलिटिक्स मतलब क्या है, हार्ड पॉलिटिक्स मतलब क्या है, जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स है, और उसके बगैर जो भी पॉलिटिक्स है उसको लो पॉलिटिक्स कहते हैं. जो कल्चर है, एजुकेशन है, ये सब जो अदर स्ट्रीम्स है ना, ये सब लो पॉलिटिक्स में आते हैं. उसमें कोऑपरेशन करना है एक दूसरे के साथ. तो उसकी और एक थ्योरी क्या है कि रिपब्लिक लिबरलिज्म, मतलब इनसाइड आउट अप्रोच जो है, वुडरो विल्सन जो 14 प्रिंसिपल की बात करता था, ठीक है. जोन ऑफ पीस है, मतलब डेमोक्रेटिक देश जो भी होंगे वो जोन ऑफ पीस होंगे, एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करेंगे. ये उनका कुछ थ्योरी है, ठीक है. यू कैन गो थ्रू दैट. देन द लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म की जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस होंगे दैट विल कंट्रोल एवरीथिंग एंड एक्सटर्नल मैकेनिज्म टू कंस्ट्रेंट अबाउट एनी सॉवरेन स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो these are all key themes: interdependence liberalism, complex interdependence, republican liberalism, liberal institutionalism. Just understand that, and core theme is notion of harmony and balance among competing interests. These are the key points again. Then let's go towards the realism, right? So रेमंड एरॉन द सेंचुरी ऑफ टोटल वॉर 1954 में उन्होंने लिखा था. यार हाइपरबोलिक वॉर्स की उनकी कंसेप्ट है. 2013 के दिसंबर में मैच द फॉलोइंग में आया था. हाइपरबोलिक वॉर्स की कंसेप्ट किसकी है? रेमंड एरॉन की है. देन द E.H. कार, उनका एक बुक है नेशनलिज्म एंड आफ्टर, 1945 में उन्होंने लिखा था. और सबसे इंपॉर्टेंट उनका बुक है ये वाला, द 20 ईयर्स क्राइसिस. 1919 और 1939 का जो पीरियड है ना, वर्ल्ड वॉर 1 से लेके वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने तक, इसको एक क्राइसिस का पीरियड मानते हैं, ठीक है. 2012 और 2014 के जून साइकिल में एक 2 बार क्वेश्चंस आ गया है, ठीक है. कार आर्ग्यूड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन रियलिज्म एंड यूटोपियनिज्म वाज डायनामिक एंड डायलेक्टिकल. व्हाट इज हिस्ट्री नाम का भी उनका एक बुक है. यह है E.H. कार. फिर आता है हैंस मॉर्गन, राइट. सो दीज आर कॉल्ड द फादर ऑफ रियलिज्म. हैंस मॉर्गन था. उनका सबसे इंपॉर्टेंट बुक था पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पीस एंड पावर. 1948 में उन्होंने लिखा था. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर, ये वो कहते हैं, ठीक है. So we all know that political realism proposed by Morgenthau believes that politics, like society in general, is governed by the objective laws that have their roots in human nature. Realism recognizes that the determining kind of interest varies depending upon the political and cultural context in which foreign policy, not to be confused with theory of international politics, is made. Right? So it does not give interest defined as power as meaning. मतलब interest defined as power ऐसी बात तो नहीं करते हैं. एक पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि 2012 के जून साइकिल में क्वेश्चन पूछा गया था. ये है हैंस मॉर्गन था. रॉबर्ट गिल्पिन है, उनका बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. फिर जॉन हर्ज है, ये क्वेश्चन भी आया था 2015 के जून में. जो जॉन हर्ज है उनका कंसेप्ट है सिक्योरिटी डिलेमा का, एक उनका कंसेप्ट है. और वो जो थिंकर है वो रियलिस्टिक लिबरलिज्म की बात करते हैं. रियलिस्टिक लिबरलिज्म, सिक्योरिटी डिलेमा, ये 2 कंसेप्ट किसके हैं? जॉन हर्ज के हैं. सैमुअल हंटिंगटन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो, थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन हो, या उनकी पॉलिटिकल डिकाई की कंसेप्ट हो, ठीक है. वी ऑल नो दैट. देन द जॉर्ज कैनन, अमेरिकन डिप्लोमेसी नाम का उनका एक बुक है, ये भी आ गया है क्वेश्चन. देन द स्टीफन क्रेसनर, ये जो है ना स्टीफन क्रेसनर, इनका एक बुक है कि इंटरनेशनल रिजीम्स की वो बात करते हैं. मैच द फॉलोइंग में 2017 के नवंबर में आया था.
He defined international regimes as implicit or explicit principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actors expects converge in given area of international relation. ये उनकी definition है, 2013 के December cycle में definition आई थी, ठीक है. Then the 5 core assumptions of realism. We all know that the power, sovereign states, anarchy, maximizing power, morality is not a driving force. ठीक है, I'm not going in depth. As of now, we can have a screenshot. यह है हैंस मॉर्गन, उनका बैलेंस ऑफ पावर नाम का बुक है. बैलेंस ऑफ पावर मैंने ऑलरेडी आप सबको समझाया है क्या है. सर्वाइवल ऑफ स्टेट सबसे ज्यादा मैटर करता है. इथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, मोरालिटी इथिक्स की बात नहीं करते. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट, आपका सर्वाइवल देखना, ठीक है. सो ह्यूमन नेचर इगोइस्टिक होता है, एब्सेंस ऑफ सेंट्रल इन अथॉरिटी है, ठीक है. स्टीफन वॉल्ट का एक रियलिज्म इज लाइकली टू रिमेन द सिंगल मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट इन आवर इंटेलेक्चुअल्स, ऐसा स्टीफन वॉल्ट ने कमेंट किया था. ये 2016 के जुलाई में पूछा गया था. देन रियलिज्म में कौन से थिंकर है, उनके बुक्स क्या क्या है देखते हैं. रॉबर्ट गिल्पिंग का हमने देखा है द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस 1971 में, और ट्रांसनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स विद रॉबर्ट क्योहन के साथ मिलके उन्होंने लिखा था 1970 में, ठीक है. देन है जॉन मर्शेमर, यह है मर्शेमर, ठीक है. तो ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर्स पॉलिटिक्स 2001 में उन्होंने लिखा था. उनमें कहते हैं कि ब्रिंगिंग स्ट्रक्चरल रियलिज्म टू पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड. स्ट्रक्चरल रियलिज्म की कंसेप्ट पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड अगर कोई अप्लाई करता है तो जॉन मर्शेमर है. उनका हमें पता है कि ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करते हो, ऑफेंसिव होना है स्टेट को, ठीक है. नीड फॉर सिक्योरिटी नॉट ड्यू टू ह्यूमन नेचर बट ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम ही ऐसे है कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत है. वाई वी विल सून मिस द कोल्ड वॉर, उनका एक थेसिस है या ऐसे उनको कह सकते हो हम लोग. तो ये जॉन मर्शेमर है. ऑफेंसिव रियलिस्ट जॉन मर्शेमर. स्ट्रक्चरल रियलिज्म में भी वो आएंगे और उसमें ही एक सब थीम है ऑफेंसिव रियलिज्म. जॉन मर्शेमर ऑफेंसिव रियलिज्म याद रखिए. मैस्टेडिनो डिफेंसिव रियलिज्म, ये जो मैस्टेडिनो है उनका है डिफेंसिव रियलिज्म. ये ऑफेंसिव है डिफेंसिव याद रखिए. जॉर्ज क्यूनन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. रेमेंडर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ईएच कार को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो उनका जो 20 ईयर्स क्राइसिस जो है ना, उसमें वो क्रिटिक ऑफ यूटोपियनिज्म एंड वर्ल्ड वेस्टर्न थॉट का क्रिटिसिज्म करते हो. 20 ईयर्स क्राइसिस में किसको क्रिटिसाइज करते हैं अगर ऐसा पूछा गया तो क्रिटिक ऑफ यूटोपियनिज्म एंड वेस्टर्न थॉट. और वो जो पीरियड है ना 20 ईयर्स, वो क्या है 1919 से 1939 के बीच में है, ठीक है. Nationalism after world is history. What is history? Sorry. So we all gone through that. Then the Samuel Huntington, the soldier and the state, the common defense 1961, 1957 जो पहला बुक है वो वाला. Political order in changing societies 1968, the clash of civilizations 1993, who are we, the challenge to American identity 2004. ये कुछ उनके बुक्स हैं, ठीक है. ये है सैमुअल हंटिंगटन. Then the Stephen Kressner, the accomplishment of the international political economy, ये उनका बुक है, ठीक है. रियलिज्म की आइडियाज क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट है, कॉम्प्लीटिंग इंटरेस्ट है, बैलेंस ऑफ पावर है, डिटरेंस है, ठीक है. और रियलिज्म का अगर इन्फ्लुएंस पीछे हमने स्ट्रेस किया तो थ्यूसिडिडस मैकियावेली तक हम जा सकते हैं. हॉब्स, थ्यूसिडिडस मैकियावेली, ठीक है. जॉन हर्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. हैंस मर्गोंदा को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है 1904 से 1980 के बीच में. वो साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स 1946 में उन्होंने बुक लिखा था. उसमें वो फॉलन मैन एंड पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर, इसकी बात करते हैं. Politics among Nations 1948, In Defense of National Interest 1951, Dilemmas of Politics 1958, Politics in the 20th Century 1962 and New Foreign Policy for US 1969. ये कुछ हैंस मॉर्गन इनके बुक्स है. ये है मॉर्गन. देन केनेट वॉल्ट्स, ये है वॉल्ट्स. उनके फेस याद रखिए, आपको थ्योरी याद आ जाएगी. ये है केनेट वॉल्ट्स, जो हम न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म के नाम से उनके जाते हैं, उनको फाउंडर या फादर माना जाता है ना, ठीक है. केनेट वॉल्ट्स को ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म. 1924 में उनका बर्थ हुआ था, ठीक है. मैन द स्टेट एंड वॉर 1959 में उन्होंने लिखा. पॉलिटिकल फिलोसफी एंड स्टडी ऑफ आईआर 1959 में. द स्टेबिलिटी ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड 1964 में. फॉरेन पॉलिसी एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1967 में. उनका सबसे इंपॉर्टेंट बुक था थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. इसमें वो न्यू रियलिज्म की बात करते हैं. थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो उन्होंने 1979 में लिखा था. देन द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स मोर मे बी बेटर 1981. द ओरिजिन ऑफ वॉर इन न्यू रियलिस्ट थ्योरी 1988. Realist thought and Neo-Realist theory 1990. The emerging structure of international politics 1993 में एक important book है, The emerging structure of international politics. फिर Neo-Realist में और कौन कौन आएंगे, जोसेफ ग्रीको है, रेमंड एरॉन है, स्टैनली हॉफमैन है, रॉबर्ट गिल्पिन है, ठीक है. So these are all thinkers. You can just look the names. So realist approach जो है वो क्या है? People are essentially selfish and competitive, meaning that egoism. Then the state system operates in the context of international anarchy, in that there is no authority higher than any sovereign state, right? So core theme is egoism plus anarchy is equal to power politics. Egoism
प्लस एनार्की इज इक्वल टू पावर पॉलिटिक्स। एनार्की के बाद न्यू रियलिस्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल रियलिस्ट करते हैं, लाइक वॉल्ट, मर्शेमर, ठीक है। और जो इगोइज्म की बात मोस्टली कौन करते हैं, क्लासिकल रियलिस्ट, मॉर्गेनथॉ, ठीक है। सो इगोइज्म प्लस एनार्की इज इक्वल टू पावर पॉलिटिक्स, याद रखिए, एनार्की स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। देन द स्टेट इगोइज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट, यू कैन गो थ्रू इन डेप्थ व्हाट इज दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन द की थीम्स, इसमें स्टेट क्राफ्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। EHR का जो 20 ईयर्स क्राइसिस जो है, या मॉर्गेनथॉ का पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो है ना 1948 में लिखा था, उसमें हमें आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट की बात करते हैं। तो उसके मॉर्गेनथॉ के जो 6 प्रिंसिपल्स है वो पूछे जा चुके हैं, 2014 में, 2012 में भी आए थे। तो क्या है कि की गाइड टू स्टेट क्राफ्ट इज अ नेशनल इंटरेस्ट, नो इथिक्स इन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, और नॉर्मेटिव एम्फेसिस ऑन स्टेट पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट, वेल बीइंग्स ऑफ सिटीजन। सो दे रिजेक्ट द यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स अप्लाई टू ऑल स्टेट। ऐसा कोई प्रिंसिपल्स नहीं है कि सभी स्टेट्स को अप्लाई हो सकते हैं, नहीं, हर एक स्टेट के सब्जेक्टिव इंटरेस्ट होते हैं, उसके हिसाब से वो अपने नेशनल इंटरेस्ट फॉर्म करते हैं और उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल थिंग्स। देन द पोलैरिटी, स्टेबिलिटी एंड द बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एनार्की एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, जो वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म है हम बाद में जाके अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन तो भी देख लीजिए। द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो 1979 में लिखा था, उसमें 3 लेवल ऑफ एनालिसिस करते हैं, ह्यूमन इंडिविजुअल लेवल, स्टेट लेवल और इंटरनेशनल सिस्टम। टेक द एग्जांपल, आई विल एक्सप्लेन दिस। सो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, राइट, नाम। सो न्यू स्ट्रक्चरलिस्ट जो है यार, ये न्यू रियलिज्म, वर्ल्ड, सपोज वर्ल्ड को अगर नाम को एनालाइज करना होगा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को, तो कैसे करेगा, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में सपोज उसको एनालाइज करना है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, तो वो क्या करेगा कि देखेगा कि इंटरनेशनल लेवल क्या थी। कोल्ड वॉर का कॉन्टेक्स्ट था, देश नए नए फ्रीडम मिल रहे थे देशों को, लाइक कोल्ड वॉर का कॉन्टेक्स्ट था, लाइक 2 ब्लॉक्स बन गए थे, ठीक है, यूएसएसआर का एक था, यूएस का एक था, ठीक है, वॉरसॉ, नाटो, एक्सेट्रा 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 थिंग्स, जो भी उनके बीच में संघर्ष चल रहा था, वो एक इंटरनेशनल सिस्टम थी, ऐसी थी। देन द अदर लेवल इज स्टेट लेवल, की एक नेशंस का रोल क्या क्या था। सो इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया का रोल क्या था, उसके बीच का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या था, ठीक है, तो उनका रोल क्या रहा है डिसीजन मेकिंग में। थर्ड इज इंडिविजुअल लेवल, ठीक है, तो एज अ नेहरू उस टाइम लीडर थे, तो नेहरू का खुद का रोल क्या रहा है, वो सोशल डेमोक्रेटिक थे, पीस थ्योरी में मानते थे, डेमोक्रेसी में मानते थे, तो इस हिसाब से उन्होंने डिसीजंस लिए। तो इंडिया एज अ कंट्री, उसका जो पास्ट लिगेसी है, जो गांधी ने जो फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया था, फ्रीडम स्ट्रगल की जो लिगेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने फॉर्म किया उसकी जो लिगेसी है, हमने जो कॉलोनियल, एक कॉलोनी थी तो उसकी एक लिगेसी है। तो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स एक तौर पे, इंडिविजुअल लेवल एज ए नेहरू उनका रोल एक तौर पे, और वर्ल्ड इंटरनेशनल सिस्टम क्या थी, तो तीनों लेवल पे वो एनालाइज करेंगे, ठीक है। दैट इज द न्यू रियलिज्म। जो सुमित गांगुली का इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो बुक है ना, वो स्ट्रक्चरल अप्रोच यूज करके लिखा गया है, यू कैन गो थ्रू दैट, आई विल रिकमेंड दैट। सो न्यू रियलिज्म एक एक्सोजेनियस है ना, कि सिस्टम डिफाइन करेगी क्या करते हैं, रियलिज्म है वो इनसाइड आउट है, लेकिन न्यू रियलिज्म इज एक्सोजेनियस, मतलब आउटसाइड इन थियरी है, कि स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा स्टेट क्या करेंगे, ठीक है। और आउटसाइड इनसाइड आउट थियरी क्या होती है, कि ह्यूमन नेचर डिफाइन करेगा कि स्टेट क्या करेंगे। सो दीज आर ऑल थिंग्स लाइक रीजन, सेल्फ हेल्प, सिक्योरिटी डायलेमा, रिलेटिव गेन की बात करेंगे ये लोग, ठीक है। देन द बाइपोलर सिस्टम स्टेबल सिस्टम होगी, मल्टीपोलर सिस्टम जो होगी इनस्टेबल होगी, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन ऑफेंसिव रियलिस्ट, मर्चेमन हमने देखा है, प्राइमरी न्यू मोटिव ऑफ द स्टेट इज टू एक्वायर पावर, स्टेट एज अ पावर मैक्सिमाइजर्स। और डिफेंसिव रियलिस्ट जो हो गए वो स्टेट एज अ सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स, इसकी बात करेंगे मैस्ट्रोडिनो की, हमने जो बात की है। देन द न्यू रियलिज्म, लेट्स गो इन डेप्थ, उसको हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं। ये है वॉल्ट्स, केनेट वॉल्ट्स, उनकी थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट बुक था। फिर जॉन मर्शेमर जो ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं, उनका द ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंट बुक है। सो फाउंडर ऑफ न्यू रियलिज्म केनेट वॉल्ट्स, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लुक दिस, और स्ट्रक्चर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर एक्टर्स, ऐसे वो बोलते हैं। 2012 के जून में एक क्वेश्चन आ गया था। थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये जो बुक है उन्होंने 1979 में लिखा है। मैन, स्टेट एंड वॉर, अ थियोरेटिकल एनालिसिस 1959 में लिखा है। ये बुक मैच द फॉलोइंग के लिए 2015 के दिसंबर में आया था। आल्सो आइडेंटिफाइज व्हाई most of the motivations of the state behavior occurs outside of the state in industrial system. He discussed the 3 images of politics. 3 images of politics ऐसे कौन डिस्कस किया है, ये भी क्वेश्चन आ गया है केनेट वॉल्ट्स 2014 के दिसंबर में। The structure of the system changes with the changes in the distribution of capitals across system units, ऐसे वो कहते हैं। So these are all things, right?
These are some statements like Walt argues that power is a risky if one has to do little or too much. 2014 के जून में आया था. फिर जॉन मर्शमर, ऑफेंसिव रियलिज्म, हमने ऑलरेडी देखा है ऑफेंसिव रियलिज्म क्या है कि पावर मैक्सिमाइजर स्टेट है इसलिए ऑफेंसिव बनना है. Who was that opinion that the survival depends on the state material capabilities and its alliances with other state. 2017 के दिसंबर में आया था. ये कैसे कौन किसने कहा है? जॉन मर्शमर ने कहा है. ठीक है. ये भी क्वेश्चन आ गया था. Who builds on Kenneth Walt's argument concerning the stability of bipolar system as compared to the multipolar system. जो मर्शमर है वो मल्टीपोलर सिस्टम लेके आते हैं और बाइपोलर सिस्टम और मल्टीपोलर सिस्टम को कंपेयर करते हैं और जो वॉल्ट लिखा हुआ था उसके ऊपर वो अपनी थ्योरी बिल्ड करते हैं. ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के जून में. Then the Morton Kaplan, we all know that this is the Morton Kaplan. Coming Anarchy उनका बुक है. Pioneer of the System Approach, मतलब जो सिस्टम डेविड ईस्टन का सिस्टम देखा है हमने वो आईआर में कौन लेके आए हैं? तो मॉर्टन कॉपलान लेके आए हैं. 2012 के दिसंबर साइकिल में एक क्वेश्चन पूछा गया था. उन्होंने एक बुक लिखा है मानसून द इंडियन ओशियन एंड द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन पावर. ये बुक उन्होंने लिखा है. सॉरी ये बुक उन्होंने नहीं 2012 के दिसंबर में. यू कैन कंफर्म दिस, देयर इज वन स्पेलिंग एरर, यू कैन कंफर्म दिस. उनका एक सीक्वेंस पूछा गया था कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मॉर्टन कॉपलान्स मॉडल ऑफ सिस्टम एनालिसिस. जो उन्होंने सिस्टम एनालिसिस किया है उसका सीक्वेंस पूछा गया था 2013 के जून में. तो देख लीजिए क्या क्या है. द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम पहले आएगा, फिर द लूज बाइपोलर सिस्टम आएगा, फिर टाइट बाइपोलर सिस्टम आएगा, द यूनिवर्सल सिस्टम आएगा, हायरार्किकल सिस्टम आएगा एंड द यूनिट वेटो सिस्टम आएगा. सो बैलेंस ऑफ पावर से स्टार्ट होता है और यूनिट वेटो तक खत्म होता है. ये उनके 6 सिस्टम्स है, उसका एक सीक्वेंस है. दे कैन आस्क अगेन. एंड द रेनविल निस्बियर है क्रिश्चियन रियलिज्म, मॉरल मैन एंड इमोरल सोसाइटी 1932 में, नेचर एंड डेस्टिनी ऑफ मैन 1939 में, रॉबर्ट जर्विस से परसेप्शन ऑफ मिसपरसेप्शन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक्सेट्रा उन्होंने लिखा है. ठीक है. सो सिस्टम थ्योरी क्या है? जो डेविड ईस्टन और गैब्रियल आर्मन की सिस्टम थ्योरी हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डिस्कस की है कि एक सिस्टम होती है, वो कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ आउटपुट्स होते हैं. ठीक है. फिर फीडबैक होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सिस्टम की एक बॉर्डर होती है और सिस्टम खुद को ऐसे फंक्शन करती है. सो उनकी जो सिस्टम थ्योरी है वो लेके आए आईआर में. सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. सो एक बाउंड्री होगी उसकी जो हमने ऑलरेडी देखा है. नेचुरल, मैकेनिकल, सोशल एक्सेट्रा थिंग्स होंगे. तो रेमंड अराउंड एक आएंगे उसमें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. देन द स्टैनले हॉफमैन सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उन्होंने लिखा है 1957 में. मॉर्टन कॉपलान सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उन्होंने लिखा है. सो उसमें वो 6 जो बात करते हैं ना कि बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, यू कैन हैव स्क्रीनशॉट. व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर हमने ऑलरेडी देखा है. देन द लूज बाइपोलर सिस्टम मतलब क्या है? नाम को लूज बाइपोलर सिस्टम कहेंगे क्योंकि 2 ब्लॉक्स भी थे और तीसरा भी ब्लॉक बन गया था. ठीक है. तो लूज बाइपोलर सिस्टम होंगी. देन द टाइट बाइपोलर सिस्टम होंगी. राइट. सो थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर द इंटरनेशनल एक्टर्स लाइक नाम कंट्रीज आर फोर्स्ड टू अलाइन विद आइदर ब्लॉक. तो वो टाइट बाइपोलर सिस्टम बन जाएंगे. देन यूनिवर्सल एक्टर सिस्टम मतलब एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एक्टर कमांडिंग यूनिवर्सल अलायंस, मतलब एक यूनिवर्सल एक्टर होगा लाइक यूएन. यूएन अभी हम यूनिवर्सल नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस है. यूएन को कितना कौन सीरियस ले लेता है हमें पता है. सो एक यूनिवर्सल एक्टर होगा. देन द हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम, एक हायरार्की होगी. देन द यूनिट वेटो सिस्टम, कोई भी किसका भी नहीं मान रहा है, पूरी तरीके से एनार्की है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो उसका कुछ क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, यू कैन गो थ्रू दैट. न्यू लिबरलिज्म, रॉबर्ट क्यून, ये जो है उनका बुक है आफ्टर हेजेमनी. और पावर एंड इंटरडिपेंडेंस भी उनका एक बुक है जो उन्होंने जोसेफ नाई दोनों ने भागीदारी में लिखा है. सो आफ्टर हेजेमनी कोऑपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 1984 में लिखा था. द प्राइमरी टेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरलिज्म. क्यून प्रोवाइड्स अ सॉलिड एम्पिरिकल आर्गुमेंट फॉर हाउ द एनार्किकल नेचर ऑफ द सिस्टम कैन स्टिल प्रोवाइड फॉर द वाइडस्प्रेड कोऑपरेशन. दिस रिमेन्स द डिफिनेटिव काउंटर फॉर वॉल्ट्स थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इट्स न्यू रियलिस्ट प्रीमाइस. सो न्यू रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स भी उन्होंने लिखा था. ये पूछा गया था 2014 के जून में. इंस्टीट्यूशनल थ्योरी एंड रियलिज्म रियलिस्ट चैलेंज 1993 में उन्होंने लिखा था. ठीक है. सो जो रॉबर्ट क्यून है उन्होंने जोसेफ नाई इन दोनों ने मिलकर पावर एंड इंटरडिपेंडेंस ये जो बुक है लिखा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन 1977 में. उसमें वो क्या बोलते हैं कि प्रोवाइड अ मेजर शिफ्ट इन लिबरल थ्योरी पुशिंग इट टुवर्ड्स अ मोर एम्पिरिकल असेसमेंट ऑफ द वर्ल्ड while still arguing that the state cooperation is a fundamental part of international community. The text establishes the concept of complex interdependence. जो complex interdependence जो जोसेफ नाय और रॉबर्ट क्यून जो दोनों ने मिलकर थ्योरी इवॉल्व की है न्यू लिबरलिज्म में, वो complex interdependence की जो थ्योरी है ना वो किस बुक में आया है? पावर एंड इंटरडिपेंडेंस ये जो बुक है उसमें वो बात करते हैं. ठीक है. ट्रांसनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1971 में लिखा था उन्होंने. जोसेफ नाय, ये है जोसेफ नाय
कॉइन टर्म सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर टर्म किसने कॉइन की है? जोसेफ नाय ने 2012 के जून और 2015 के दिसंबर साइकिल में 2 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। सॉफ्ट पावर क्या है कि द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स 2004 ये उनका बुक था। केवन एंड नाय पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, हमने ऑलरेडी सॉफ्ट पावर क्या है डिस्कस किया है ना, कि हार्ड पावर क्या है कि मिलिट्रिस्टिक स्ट्रेटेजिक पावर, उसके बियॉन्ड जो भी है वो सब सॉफ्ट पावर है। इकोनॉमिक ट्रेड होना, आपके अच्छे रिलेशन है, तो फिर हम बुद्धा का यूज करते हैं ईस्टर्न कंट्रीज के लिए, गांधी का यूज करते हैं हम वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। यूज मतलब इन द सेंस कि गांधी को प्रोपेगेट करना, गांधी का देश है ऐसे ऐसे। सो दीज आर ऑल सॉफ्ट पावर, राइट। मूवीज है एक दूसरे के देश में, जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं, सो दीज आर ऑल सॉफ्ट पावर। अमेरिका का यहाँ जो मैकडोनल्ड होगा या जो भी कुछ है ना, ये सब दीज आर ऑल कॉल्ड द अमेरिकन सॉफ्ट पावर इन इंडिया। सो डेविड मिटर ने कहा द फंक्शनल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स जो है 1975 में, हम बाद में डिस्कस करेंगे फंक्शनल एंड न्यू फंक्शनलिस्ट थ्योरी। उनका एक उन्होंने कॉइन किया था टर्म फंक्शनलिज्म एंड फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। सो उनका टर्म था कि फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। 2013 के जून में डेविड मिटर ने कहा पूछा गया था। और केवन और नाय का अगर कुछ डिस्कस करना है तो पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रांजिशन हमने ऑलरेडी देखा है। गेव थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जोसेफ नाय और केवन इन दोनों ने मिलकर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। सो फंक्शनलिज्म क्या है? Functionalism is not in the syllabus of your NET JRF. So, but still just remember that the David Mitter का एक concept है। वर्किंग पीस सिस्टम उन्होंने 1966 में लिखा था। द फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स 1975 में लिखा था, ठीक है। सो उनके एजम्पशंस क्या है देख लीजिए। मैन इज सफिशिएंटली रैशनल टू रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ कोऑपरेशन इफ इट ब्रिंग्स हिम रिवॉर्ड्स। मैन अल्टीमेटली प्रेफर नॉट टू किल, ही प्रेफर पीस। वॉर इज सीज्ड बाय पॉवर्टी, मिसरेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब वॉर क्यों होता है? क्योंकि पॉवर्टी, मिसरे, डिस्पेयर, कुछ रीजंस होते हैं। सो दिस इज ऑल theory, you can have a screenshot. Then the criticism to functionalist theory, you can have a screenshot. Then the new functionalism. New functionalism एक important theory है। अर्न हैस 1924-2003 के बीच में जीवित थे। उन्होंने बियॉन्ड द नेशन स्टेट 1964 में लिखा और टैंगल्स ऑफ होप्स 1969 में लिखा है। उसमें वो आइलैंड ऑफ होप की बात करते हैं ना, कि जिन जिन देश में ये कुछ डेमोक्रेसी है, लाइक EU, आइलैंड ऑफ होप। So revised functionalism and sought to explain how international cooperation tends to broaden and deepen through a process of spillover. कि अगर आप एजुकेशन में कोऑपरेट करते हो, सपोज आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हो, दोनों देश के बीच में इकोनॉमिक ट्रेड है, तो फिर आप एजुकेशन में भी कोऑपरेट करते हो। तो एजुकेशन में कोऑपरेट करने के बाद आप सपोज सिविल न्यूक्लियर डील में कोऑपरेट करने लगे, और फिर बाद में आप स्ट्रेटेजिक भी डील्स करने लगे दो देशों के बीच में, तो एक स्पिल ओवर होता है, ठीक है। एक सेक्शन में रिलेशंस अच्छे होते हैं, पर दूसरे में तीसरे ओवरऑल रिलेशंस अच्छे बन जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यू फंक्शनलिज्म, राइट। एक सुपरानेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे। न्यू फंक्शनलिज्म thus proposes to reach its ultimate goal of supranational community, not by avoiding controversial issue areas but by stressing cooperation in areas that are politically controversial. So फंक्शनलिज्म जो था ना, वो अवॉइड करता था जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल चीजों पे बात करने के लिए, लेकिन न्यू फंक्शनलिज्म ऐसे नहीं करता है, वो बात करेंगे उसके ऊपर भी। बियॉन्ड द नेशन उनका बुक है, याद रखिए। इंटीग्रेशन हैज टू डू विथ getting self-interested politically allied to identify their cooperation. So cooperation places greater emphasis on the interplay between economics and politics. Economics और politics के interplay पे फोकस करेंगे। Spillover effect है। इनका इंटीग्रेशन का ये जो डेफिनेशन है वो देख लीजिए, ठीक है। और जो मिटर ने पे ही बिल्ड किया है ये थियरी। उसके कुछ ड्रॉबैक्स है, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ न्यू फंक्शनलिज्म? Then the structural Marxism, right? So Marx मतलब क्या है कि state is a instrument of bourgeoisie. तो state जो होगा, जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश की होगी, वो बुर्जुआजी लोगों के इंटरेस्ट में होगी और उसके हिसाब से सब डिसाइड किया जाएगा। और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आएगी इसमें, डिपेंडेंसी स्कूल आएगा, अंडर डेवलपमेंट थ्योरी, डिपेंडेंसी, सेमी पेरीफेरी, कोर, ये सब बातें होंगी। सो वी आर गोइंग टू गो थ्रू दैट लेटर। सो मार्क्सिस्ट अप्रोचेस जो है ना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक पावर, इंटरनेशनल कैपिटल, पावर इम्बैलेंस है, एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हेजीमनी है, इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जो लेनिन का बुक था, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टेट्स आर नॉट ऑटोनॉमस, दे आर कंट्रोल्ड बाय द बुर्जुआजी क्लास। इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन है, कैपिटलिज्म एज एक्सपांसिव, कैपिटलिज्म एक्सपांसिव है, इसलिए सब कॉलोनियलिज्म, अभी न्यू कॉलोनियलिज्म है। सो उसमें कुछ क्रिटिकल थियरिस्ट भी आएंगे बाद में। मार्क्स का जो मटेरियलिस्ट कंसेप्शन में हिस्ट्री है, उससे ही कुछ इन्फ्लुएंस होते हैं ये लोग। ये जो लेनिन का बुक है ना, द इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये पूछते हैं बार बार।
सो न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या क्या है, डिपेंडेंसी स्कूल एक है और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, वी आर गोइंग टू लुक दैट इन डेप्थ। सो क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी जो है ना, क्रिटिकल थ्योरी मतलब फ्रैंकफर्ट स्कूल, राइट। कल्चर एथनोटिज्म को उन्होंने एनालिसिस किया, रीजन और रैशनैलिटी को भी क्वेश्चन किए। जर्गन हेबरमास आएंगे सॉरी इसमें, तो वो रेडिकल डेमोक्रेसी एज अ मींस ऑफ अनलॉकिंग द इमेंसिपेटरी पोटेंशियल इनहेरेंट इन द रियम ऑफ कम्युनिकेशन ऐसे बोलते हैं। एंड्रू लिकलेंटर आएंगे। सो रॉबर्ट कॉक्स, एजे फ्रैंक्स, स्टीफन गिल, एंटोनियो ग्राम्सी, जर्गन हेबरमास, एंड्रू लिकलेटर। So these are all thinkers. They can ask you for the match the following, etc. So what critical international theory do? They seek to advance the emancipation of human freedom or to conduct the global affairs. A relevant critic seeks to trace forms of exclusion that instigate both, मतलब जो exclusion हुआ है, inequality है, hierarchical, interdependent, dominant, hegemonic system है, उसको criticize करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं क्या है theory। सो मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है या क्रिटिकल थियरीज, दोनों का भी मैंने ये कौन सा थिंकर है और कौन सी बुक्स लिखी है देखे। एंटोनियो ग्राम्सी है 1891 से 1937 के बीच में, उन्होंने प्रिजन नोटबुक लिखा था 1971 में जो पब्लिश हुआ था। कॉइन्ड द टर्म हेजीमनी, एडवोकेट ऑफ द सोशल रिजोल्यूशन। हेबरमास है, उन्होंने इंपेरियलिज्म स्टडी 1902 में लिखा था। रुडोल्फ हेपडुंग, रोजा लग्जमबर्ग, फाइनेंशियल कैपिटल की बात करते हैं। नेक्रिमा जो है उन्होंने न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म का बुक लिखा था। एजे फ्रैंक है जो उन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी दी है, सेंट्रल पेरिफेरी की बात करते हैं। ठीक है, और एजे फ्रैंक डोमिनेटली मेट्रोपोलिस और सैटेलाइट की बात करते थे। सो कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, चिली एंड ब्राजील का उन्होंने एनालिसिस किया था। उसमें जो दो देश है 1967 में पब्लिश हुआ था ये बुक, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें वो डिपेंडेंसी थ्योरी देते हैं। लैटिन अमेरिका अंडर डेवलपमेंट एंड रिवोल्यूशन 1970 में, ऑन कैपिटलिस्ट अंडर डेवलपमेंट, वर्ल्ड एक्यूमुलेशन, क्राइसिस इन वेस्टर्न इकोनॉमी, क्राइसिस इन थर्ड वर्ल्ड, क्रिटिक ऑफ एंटी क्रिटिक, रीओरिएंटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इन द एज ऑफ एसएनएच। ठीक है, सो दीज आर ऑल बुक्स ऑफ एंड्रे गुटर फ्रैंक। विंसेंट फेडरो है, उनका डिपेंडेंसी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन बुक है। रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स 1926 में उनका बर्थ हुआ था, उन्होंने कुछ कुछ लिखा है कि थियरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस, ये पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट। सो उनके बुक्स क्या थे कि सोशल फोर्सेस, स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर बियॉन्ड आईआर, अप्रोचेस टू द वर्ल्ड ऑर्डर। ग्राम्सी हेजेमनी को उन्होंने एनालिसिस किया है। प्रोडक्शन, पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल प्रेस्टोरिका, ये जो कंसेप्ट है ना रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स का, पूछा जा सकता है। ठीक है, दीज आर ऑल बुक्स, यू कैन हैव स्क्रीनशॉट। देन द कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें वो एंड में बोलते हैं कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक उनका बुक है। जोनाथन जोसेफ है, जो मार्क्सिज्म सोशल थ्योरी उन्होंने लिखा था 2006 में। जर्गन हेबरमास है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव एक्शन, ये थ्योरी किसकी है, जर्गन हेबरमास की है, 1984 में उन्होंने लिखी थी। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड पब्लिक स्फीयर, लेजिटिमाइजेशन क्राइसिस 1975 में। बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स 1996 में, और द डिवाइडेड वेस्ट 2006 में। एंड्रू लिकलेटर है, रैशनैलिटी एंड ऑब्लिगेशन इन द स्टेटशिप 1981 में, और स्टीफन गिल। सो दीज आर ऑल थिंकर्स मार्क्सिस्ट अप्रोच और क्रिटिकल थियरीज में आएंगे। सो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या है, हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो उसका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के फाउंडर कौन है, इमैनुअल वॉलरस्टीन, राइट। इन्फ्लुएंस बाय द न्यू मार्क्सिस्ट डिपेंडेंसी थ्योरी, एजे फ्रैंक से इन्फ्लुएंस हो गए थे। उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी है, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो कल्चर, डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर एंड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी। तो जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम है ना, वो कैरेक्टराइज बाय क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर है कोर पेरिफेरी के बीच में। ठीक है, और जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम है क्या है, अनइक्वल है, अबॉल कैपिटलिस्ट है, हायरार्किकल है, एक्सप्लॉइटेटिव है, यूनिवर्सल है वो सिस्टम। तो क्या होता है कि जो पेरीफेरी है, सपोज एक पेरीफेरी मतलब युगांडा, सूडान, सपोज ऐसे कुछ देश है जो पूरे अंडर डेवलप्ड है, और वहां से जो रिसोर्सेस होते हैं वो फेच आउट किए जाते हैं, और वो रिसोर्सेज जो रॉ मटेरियल बन के डेवलप्ड नेशन है या कोई सेमी पेरीफेरी इंडिया है सपोज, तो वहां जाएंगे, या कोई अदर कंट्रीज है सपोज ब्राजील में जाएंगे, तो ठीक है, तो वहां पे उसके ऊपर प्रोसेस होगा, और कुछ रॉ मटेरियल होगा सेमी पेरीफेरी, सपोज इंडिया में है या ब्राजील में है, तो रॉ मटेरियल और डेवलप्ड नेशन में जाएगा, यूके है या यूएस है या कनाडा है। सो ऑल रिसोर्सेज गोज टू द डेवलप्ड नेशन, और ये जो देश है वो अंडर डेवलप्ड ही रह जाते हैं, लिस्ट डेवलप्ड ही रह जाते हैं, और इनके अंडर डेवलपमेंट के कारण उनका डेवलपमेंट होता है। सो दिस इज ऑल थियरी एंड ऑल दिस वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थियरी। यू कैन विजिट द कंप्लीट कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो वीडियो है, उसमें आप टाइम स्टैम्प में जाइए, और टाइम स्टैम्प में वहां पे यू कैन सी वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच और डिपेंडेंसी थियरी, यू कैन वॉच दैट इन डेप्थ।
सो पेरीफेरी, कोर, सेमी पेरीफेरी ऐसे डिवाइड करते हैं, ज्यादातर पूछेंगे तो यही। सो you can have a screenshot of this. There are going to be cyclical rhythm, boom and bust, secular trend, long term growth or contradiction, then the contradiction, constraint and the crisis. So these are going to, मतलब वर्ल्ड सिस्टम जो होगी उसका जैसे राइज होगा उसी तरह से उसका डिमाइज भी होगा। सो डिमाइज कैसे होगा कि ये इन 4 स्टेजेस होंगे उसके, राइट। यू कैन हैव स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। देन द न्यू रेडिकल थियरीज जो है यही आएंगे। एजे फ्रैंक, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका 1967 में उन्होंने लिखा था। उसमें वो डिपेंडेंसी थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, चेन ऑफ मेट्रोपोलिस एंड सैटेलाइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। पॉल बैरन के आइडियाज पे उन्होंने बिल्ड किया था। डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट क्रिटिसाइज बाय, ये जो थ्योरी है ना वो लैक्लेव ने क्रिटिसाइज किया है इस थ्योरी को। समीरा मीन सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर है उसमें, कि उन्होंने बुक लिखा था एक्यूमुलेशन ऑन वर्ल्ड स्केल, क्रिटिक ऑफ द थियरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट 1974 में उन्होंने लिखा था। एक अफ्रीकन स्कॉलर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज आर इंटीग्रेटेड इन अ मैनर विच इनहेबिट्स ए कैपिटलिज्म फ्रॉम परफॉर्मिंग इट्स हिस्टोरिकल रोल of developing the productive forces in underdeveloped capitalism. Less developed countries were no longer capable of attaining their autonomous self-sustaining growth. So कुछ structural limitations है, ये जो पूरा चेन बन गया है ना कि पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी और कोर के बीच में जो चेन बन गया है, ये एक स्ट्रक्चरल लिमिट डाल देता है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो कभी डेवलप ही नहीं हो पाएंगी, मतलब स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस है। फिर इमैनुअल वॉलेंस्टीन है जो उन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दिया। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी उन्होंने 1979 में लिखा था। सोशल चेंज एंड कॉलोनियल सिचुएशन या अदर कुछ उनके बुक्स है, यू कैन गो थ्रू दैट। इकला है क्या, यूएन इकला, जो एक ऑर्गेनाइजेशन या कमीशन स्टैब्लिश हुआ था कि लैटिन अमेरिकन कंट्री की इकोनॉमी असेस करने के लिए। सो उसमें ये कुछ स्कॉलर्स थे, उन्होंने वो इस थ्योरी की बात की, ठीक है। पॉल बरन है, द ओरिजिन ऑफ अंडर डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है, तो पॉल बरन, उसके थ्योरी पे वो बिल्ड करते हैं लोग। So there are some other alternative theories, right? Suppose constructivism, तो constructivism में कौन आएंगे, अलेक्जेंडर वेंडेट, क्रिश्चियन रस स्मिथ, जेफ्री चेकेल, मार्था फिनमोर, सो निकोलस ओनुफे। कंस्ट्रक्टिविज्म जो वर्ड है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म, वो किसने कॉइन किया है, तो ये इन्होंने कॉइन किया है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। देन द फ्रेडरिक क्रिटवेल और जॉन रिगर। जो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है कि आइडियाज डू मैटर, पावर ऑफ आइडियाज, मतलब हम कैसे सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे व्यू में, उसी तरह से हम एक्शन करते हैं। मतलब आइडियाज, यू टेक्स दैट आइडियाज इनटू योर एक्शन एंड बाय योर एक्शन यू फॉर्म द इंटरनेशनल जो भी वर्ल्ड ऑर्डर है जो भी है। तो पावर ऑफ आइडियाज इन डिफाइनिंग रेंजेस ऑफ एक्शंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडिया, नॉर्म्स, इसकी बात कौन करेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म लोग करेंगे, ठीक है। तो उसमें ये भी कुछ थिंकर्स आएंगे, इमैनुअल एल्टर, कैरन फ्रिके, रोमी लिप्सबर्ग। So these are all constructivism. Then the postmodernism, we already discussed what is postmodernism, कि एक ही चीज को बहुत सारे एंगल से देखा जा सकता है, एक सब्जेक्टिव है ना, अल्टीमेट ट्रूथ ऐसा कुछ है नहीं। सो पोस्टमॉडर्निज्म में क्या आएंगे कि माइकल फोको आएंगे, मिशेल फोको आएंगे, डेविड कैम्पबेल, रिचर्ड एस्ले, रॉबर्ट वॉल्कर, ये सब थिंकर्स आएंगे। फेमिनिज्म में कौन कौन आएगा कि साइत्या एनलोई, लेवरा सेवे, उनका बुक जो है बाद में यू कैन हैव स्क्रीनशॉट। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि जे ए टिकनर, फेमिनिस्ट एंड आईआर, 2011 में उन्होंने लिखा था। उनका एक बुक है, हम बाद में देखेंगे कौन सा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट उसमें थ्योरी यही है कि जे ए टिकनर, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ आईआर में, ठीक है। सो दीज आर अदर थिंकर्स एज वेल। सो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में ये सब थिंकर्स है। निकोलस ओनफ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उनका वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग 1989 में, और coined the term constructivism 2015 के दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। these are all other thinkers as well, you can go through that, you can have a screenshot। अलेक्जेंडर वेंडेट का सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। मार्था फिनमोर का नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सोसाइटी, रूल्स ऑफ वर्ल्ड इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये कुछ बुक्स है, ठीक है। जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है हम देखते चलो। कंस्ट्रक्टिविज्म इज ऑफन सेड टू सिंपली स्टेट द ऑब्वियस। क्या ऑब्वियस है कि दैट द एक्शंस, इंटरैक्शंस एंड परसेप्शंस शेप द रियलिटी, focuses on role of ideas, identities, norms, cultures in national politics, right? So identity determines interest,
इंटरेस्ट डिटरमाइंस एक्शन एंड थ्रू आवर थॉट्स एंड एक्शंस लिटरली वी कंस्ट्रक्ट आवर इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसे वो बोलते हैं. सो दे शो दैट फॉर इंस्टेंस दैट इज नॉट ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल पावर, वेल्थ एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस दैट कैन एक्सप्लेन द स्टेट बिहेवियर, बट आल्सो आइडियाज, आइडेंटिटी, नॉर्म्स, these are all things are going to explain the what state will do, right? So जो ये additional जो factors है ना, जो reality है वो fixed नहीं है, rather it is subject to change, ऐसे वो constructivist लोग कहते हैं. फिर फेमिनिज्म क्या कहेंगे कि जेंडर पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को देखेंगे और उसी तरीके से एनालाइज करेंगे. सो जीन वेथिंग, एस्लिटिन, सैंथिया इनलोई, पर्सनली इज इंटरनेशनल, ये उनका एक टर्म फेमस है, ठीक है, याद रखिए किसका है, सैंथिया इनलोई का पर्सनल इज इंटरनेशनल. और बनानास, बीचेस एंड बेसेस, ये उन्होंने एक बुक लिखा था. और क्रिश्चियन सेल्वेस्टर एक थिंकर है, जे टिकनर, जो हमने बोला था ना कि उनका एक बुक है मैच द फॉलोइंग में 2017 के नवंबर में आया था, जेंडरिंग वर्ल्ड ऑर्डर, सॉरी जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स. सो उनके और क्या कंसेप्ट है कि फेमिनिज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उनका बुक है. जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस और एक उनका बुक है. She reformulated Morgenthau's 6 principle of IR from feminist perspective. फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव से मॉर्गेनथॉ के जो 6 प्रिंसिपल्स जो हमने देखे हैं रियलिस्ट थ्योरी में, उसको रिफॉर्मुलेट किया. ऐसे पूछा गया था, क्वेश्चन भी आ गया है. सो फेमिनिस्ट रिसर्च हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द वैल्यू इन टेकिंग वुमेन्स एक्सपीरियंसेस एंड कंट्रीब्यूशन सीरियसली एंड यूज्ड दैट एज अ बेस टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ IR रेस्ट ऑन एंड परपेचुएट्स जेंडर्ड आइडियाज. सो दिस इज ऑल अबाउट फेमिनिज्म. कैरल कोहेन, उनका एक वुमेन एंड वॉर्स बुक है. लेवरास जोसबर्ग, उनका जेंडरिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ वॉर एक बुक है. सो दीज आर ऑल अबाउट फेमिनिज्म, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट. देन द पोस्टमॉडर्निज्म, दीज आर ऑल थिंकर्स, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट, राइट? एशले और कैम्बेल, फोको, वॉल्कर, लोटर का मिसट्रस्ट ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स, ये एक बुक, उनका सॉरी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और डेरिडा का डिकंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. सो इंग्लिश स्कूल क्या है? एक इंटरनेशनल सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी कम्युनिटी की बात करते हैं, ठीक है. सो हेडले बुल एक इंग्लिश स्कूल में एक कौन से थिंकर आते हैं, तो हेडले बुल एक आते हैं. ऐसा 2017 के जनवरी में क्वेश्चन पूछा गया था. उनका बुक है द एनार्किकल सोसाइटी. ही डिफाइंड द इंटरनेशनल सिस्टम एज अ बीइंग फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर स्टेट्स हैव सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम एंड हैव अ सफिशिएंट इंपैक्ट ऑन वन अनदर. सो डिसीजंस टू कॉज देम और दे बिहेव इन पार्ट ऑफ होल. तो एक दूसरे के ऊपर एक इंपैक्ट होता है हमारे डिसीजंस का, एक रिलेशंस होते हैं, कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है. सो बैरी विजमैन, टिमोथी ड्यून, जॉन विंसेंट, जेम्स मेवल का एक बुक है नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनल सोसाइटी 1990 में उन्होंने लिखा था. मार्टिन वाइट, इसके ऊपर दो से तीन बार क्वेश्चन आ चुके हैं. सिस्टम ऑफ स्टेट 1977 में उन्होंने लिखा था. जो मार्टिन वीट है, ही कंबाइंड द रैशनलाइजेशन ऑफ ह्यूगो ग्रूटस, रियलिज्म ऑफ हॉब्स एंड मैकियावेली एंड रिवोल्यूशनिज्म ऑफ कांट टू डेवलप अ सिंथेटिक आईआर थ्योरी. 2013 के जून में एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है. रैशनलिज्म, रियलिज्म एंड रिवोल्यूशनिज्म, किसका क्या है देख लीजिए. ह्यूगो ग्रूटस का रैशनलिज्म है, हॉब्स मैकियावेली का रियलिज्म है और रिवोल्यूशनिज्म कांट का है. तीनों को सिंथेसाइज करके खुद का थ्योरी लेके आए थे मार्टिन वीट. ये पूछा गया था क्वेश्चन 2013 के जून में. इंटरनेशनल सोसाइटी ट्रेडिशन इज आल्सो नोन एज द इंग्लिश स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. सो इंटरनेशनल सोसाइटी ट्रेडिशन, इंग्लिश स्कूल को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल सोसाइटी ट्रेडिशन. 2012 के जून में और 2012 के दिसंबर में भी क्वेश्चन आया था. सो टू इंपॉर्टेंट डिबेट्स, इंग्लिश स्कूल के बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट डिबेट्स. सो फर्स्ट इज वेदर द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनेशनल सिस्टम एंड एन इंटरनेशनल सोसाइटी इज वैलिड, क्या ये वैलिड है? एंड इफ यस देन वेयर डज द बाउंड्री लाई बिटवीन, ठीक है, ये फर्स्ट. सेकंड इज प्लुरलिस्ट वर्सेस सॉलिडारिस्ट, ये जो डिबेट है. और जो रिलेशनशिप होगा इंटरनेशनल सोसाइटी एंड वर्ल्ड सोसाइटी के बीच में, रिलेशन क्या है. सो जो फर्स्ट डिबेट था उसका रिजल्ट आ गया है उनके डिबेट्स में. तो ये क्या है कि फर्स्ट डिबेट हैज रिजल्टेड इन द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रीमाइस दैट जो इंटरनेशनल सिस्टम होगी that will constitute weak or thin form of international society. So international society is a broad version. एक इंटरनेशनल सोसाइटी, इंग्लिश स्कूल किसकी बात करते हैं? इंटरनेशनल सोसाइटी की. और इंटरनेशनल सोसाइटी में एक सब थीम लेयर या एक वीक फॉर्म में इंटरनेशनल सिस्टम काम करेगी. सो इंटरनेशनल सोसाइटी इज अ ब्रॉडर थिंग. जो प्लुरलिस्टिक सॉलिडारिस्टिक डिबेट था ये अभी भी चल रहा है. यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, डेमोक्रेसी की बात भी करते हैं, ठीक है. These are some one-liners. Assertion, reason में क्वेश्चन पूछा गया स्टेटमेंट्स है लाइक न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म आर रैशनलिस्ट अप्रोचेस. न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म आर बोथ आर रैशनलिस्ट अप्रोचेस. फेमिनिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आर रिफ्लेक्टिविस्ट अप्रोचेस. फेमिनिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म रिफ्लेक्टिव, ये दो स्टेटमेंट 2017 के नवंबर में आए थे.
Collective security and balance of power policy are compatible under usual circumstances. The balance of power principle is derived by the structuralism and the concept of collective security is proposed by the liberal institutionalism. 2018 के जुलाई में आया था. फिर ये कुछ theories है ना कि Renveld Niver की there is no possibility of drawing a sharp line between the wheel of life and the wheel to power. E.H. Carr का in its essence power is an indivisible whole. Renveld Niver का और एक आया था कि for military reasons a state should be economically self-sufficient. और हैंस मॉर्गन का द स्ट्रगल फॉर पावर इज यूनिवर्सल एंड इन टाइम स्पेस इट इज अनडिनाइबल फैक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस. ये कुछ उनके स्टेटमेंट्स है. सो दीज आर सम वन लाइनर्स लाइक अप्रोचेस. देखो जेएनयू में पूछे गए क्वेश्चन थे जो मैंने एनालाइज किए थे उस टाइम में. रियलिज्म एनार्की की बात करता है, नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है, उसमें मॉर्गन तो आएगा रियलिज्म में. ठीक है. डेमोक्रेटिक बेस थ्योरी एडवोकेट कौन है? माइकल डॉयले है. रोनाल्ड वॉल्ट, पॉल ब्रिस्बे, जोसेफ नाई कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करता है. ठीक है. So these are some one-liners. You can have a screenshot or you can discuss. Hans Morgan तो classical realism, Kenneth Walt neoclassical realism, liberal approach में democratic peace theory आएगी. Identity का concept कौन बात करते हैं? Constructivist ideas etc. So security in IR, state centric की बात है. Complex interdependence, neoliberalism वाले लोग complex interdependence की बात करते हैं. जोसेफ नाई, रॉबर्ट क्योन. ठीक है. International society approach, English school. So these are all. bargaining theory किसके? शेलिंग के है. Game theory है शेबलिक, शेलिंग, रैफर्ड, कार्ल ल्यूइस एक्सेट्रा लोग आएंगे गेम थ्योरी में. सो हंटिंगटन का कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेस्ट एंड रेस्ट. माइकल मैन का फंक्शन ऑफ द स्टेट अपीयर ओवरवेलमिंगली मिलिटरीली एंड जियोपॉलिटिकली रादर देन इकोनॉमिक. क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है एक्सेट्रा. दीज आर आई एनालाइज्ड दिस ऑल क्वेश्चंस राइट. मॉर्गन था का पॉलिटिक्स अमंग नेशन. जोसेफ नाई का द पैराडॉक्स ऑफ अमेरिकन पावर. रॉबर्ट क्योन का पावर एंड इंटरडिपेंडेंस. केनेट वॉल्स का थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. कोल्ड वॉर का बाइपोलर ऑर्डर. एंड्रे फ्रैंक का मतलब जो एंड्रे गुडर फ्रैंक का उनको डिपेंडेंसी थ्योरी. लैटिन अमेरिका का बारे में रिवोल्यूशन की बात करते हैं. 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड बुक किसका है? गैरिन फेचर ऐसे कुछ है. यू कैन लेटर सर्च फॉर दैट. कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस जोहान गैल्टन. एंड ऑफ हिस्ट एंड लास्ट मैन फुकुयामा. थ्योरी ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन ट्रॉट्स्की. यूनिपोलर मूवमेंट. So these are all things. Copenhagen School of IR shift from emphasis on traditional military security to the non-traditional जो Copenhagen School है. Multiculturalism के benefits क्या है? You can just look through this. So almost in 1 hour we have completed all the theories. This was like quick revision session, right? So you can have the screenshots. There is a timestamp. You can directly click on the timestamp in description box, right? So at the end I would like to say that आपकी एग्जाम आ रही है. दैट्स वाई आई हरीड अप एंड जस्ट क्विकली वी रिवाइज्ड ऑल द स्टफ. डू लाइक इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक इट, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट? थैंक यू ऑल.